head, your forehead, your first room. Become aware of your third eye. आज्ञा चक्र पर पूरा ध्यान, जो भी चल रहा है मन में उस पर ध्यान। कहीं भी अगर आपको माइग्रेन का पेन होता हो या सर में दर्द होता हो, पूरा ध्यान अपने मस्तक पर, अपने फोरहेड पर। थिंक योर ओन पिक्चर। कल्पना करें बंद आंखों से आप अपनी ही तस्वीर देख रहे हैं। विजुअलाइज योरसेल्फ। किस कलर के कपड़े पहने याद करें। Become aware of your second room, your sense organs. First, right ear, left ear, right eye, लेफ्ट आई। दोनों आंखों पर अपना ध्यान। आंखों में अगर चश्मा लगता है, रोशनी से चिंतित है, तो जस्ट प्रे हील एंड ब्लेस टुवर्ड योर आईज। बिकम अवेयर ऑफ योर नोस्ट्रल्स। अपनी नासिकाओं पर अपना ध्यान। Become aware of your mouth. अपने मुख पर अपना ध्यान। Feel the water element in your mouth. Become aware of your tongue. Now become aware of your throat area. अपने कंठ पर, गले पर अपना ध्यान लेना है। अपने दूसरे कमरे में, your second room, throat area. पूरा ध्यान अपने कंठ पर, गले पर। कुछ भी खराश हो ठीक करें। अच्छा नहीं लगा रही। आहिस्ता आहिस्ता अपना ध्यान अपने थर्ड रूम, अपने हाथों पर लेकर आए। बिकम अवेयर ऑफ योर राइट शोल्डर। सीधे हाथ का कंधा, सीधी कोहनी, सीधे हाथ की उंगलियां, राइट शोल्डर, राइट एल्बो, राइट हैंड फिंगर्स। Any pain in the shoulders, become aware of it.
धीरे बाएं हाथ पर अपना ध्यान ले आए. बिकम अवेयर ऑफ योर लेफ्ट रूम, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट एल्बो, left hand fingers. Your third room. Now become aware of your any younger brother or younger sister. आपके छोटे बहन भाई हो, उन पर अपना ध्यान देना. Now become aware of your fourth room, your chest area. Expand your lungs. Inhale and exhale. Whole attention on chest area. Become aware of your mother face. अपनी माँ का चेहरा आंखों में लेकर आए. मन रूपी आंखों से अपने माँ को याद करें. Recall your mother element. Whole attention on your heart chakra. Any asthmatic problem, any breathing problem, कोई विश्वास संबंधी दिक्कत हो, पूरा ध्यान चेस्ट पर रखें. माँ का चेहरा भी याद करें साथ में. Become aware of your fifth room, your heart. अपने शरीर के पांचवें कमरे में प्रवेश करें. पूरा ध्यान अपने हृदय पर. Full attention on your heart. Think of your father face. अपने पिता का चेहरा याद करें. इस धरती पर हैं या नहीं, उनके साथ बिताए गए पलों के साथ रहें. Be with your father. Spend your time. Now entered in your sixth room, upper stomach area, liver side. More attention on the liver, upper abdomen intestine, any loan, any debt is running, this recall. अगर कोई भी आपके ऊपर ऋण चल रहा हो, लोन चल रहा हो, उस पर ध्यान देना है. Any type of debt.
Think about your mama face. अपने मामा, either your mother's mother or mother's sister. Think about that. Now entered in your seventh room, your reproductive organs, genitals, kidney, gallbladder, पूरा ध्यान अपने जननांगों पर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आसपास के पूरे क्षेत्र पर पूरा ध्यान. It's your seventh room. If you are married, think about your spouse. अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी पर अपना ध्यान ले जाएं. जो भी पल अपने जीवन साथी के साथ बिताए हैं उनको याद करें. And activate your seventh room. If you are any business partner, अगर कोई आपका बिजनेस पार्टनर है उस पर भी अपना ध्यान ले जाएं. Become aware of your नानी, your mother's mothers. अपनी माँ की माँ का चेहरा याद हो आपको, नाम याद हो, कुछ पल उनके साथ बीते हो नानी के साथ, उनको याद करें. Now become aware of your touch point, where your body is touching to the sofa, chair. जहां शरीर स्पर्श कर रहा है उस स्थान पर अपना ध्यान ले जाएं. Your pelvic region, any type of pain, just pray, heal and bless. Become aware of your in-laws. अपने ससुराल पक्ष पर अपना ध्यान दें. Father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, brother-in-law, जो भी आपके जीवन में है.
Become aware of your right thigh. Your ninth room, become aware of the right thigh. इस अस्थाई शरीर के नाइन्थ रूम थाई पर अपना ध्यान ले जा, राइट थाई, लेफ्ट थाई, Now think of your father face. अपने पिता का चेहरा फिर लाए आंखों में. Again try to spend what time you spent with your father. Full attention on your father. पूरा ध्यान अपने पिता पर. Just pay the gratitude to your father element for providing the courage, providing the protection. Think about your any spiritual mentor. If you follow that a guru, guru's room is ninth room. Just think of your spiritual mentor. Now ready to go in the ninth room, 10th room, right knee, left knee, सीधा घुटना, बायां घुटना. If you are any pain, अगर शरीर में कहीं दर्द होता हो घुटनों पर, तो घुटनों पर ध्यान ले जाए. And thinking about your प्रोफेशनल मेंटर, जो भी आपका प्रोफेशनल मेंटर हो, उस पर अपना ध्यान. जो भी आपका बॉस हो प्रोफेशनल लाइफ में, उसको याद करें. The same time think about your mother-in-law. अपनी सासू माँ का चेहरा भी आंखों में लेकर आए.
Now become aware of your right leg knee 2 feet. अपने घुटने से पैर तक के बीच की मांसपेशियों पर अपना ध्यान देना है. The same left leg also, from knee to ankle, right knee to ankle, left knee to ankle. Any pain you feel, focus on the pain and be with your elder siblings. अपने बड़े भाइयों का चेहरा याद करें. And activate what you want from now. Every planet, most of the planets are their own home. Just what you want. क्या चाहते हैं आने वाले जीवन से? अपनी इच्छाओं पर अपना ध्यान. Now become aware of your feet. Right ankle, right feet. Left ankle, left feet, your 12th toe.
पूरा ध्यान जहां जाना चाह रहा है जाने दो। खुला छोड़ दें अपने आप को, विचारों को आने दें, मन को बाहर जाने दें। बंद आंख के साथ विश्राम करें, रिलैक्स द बॉडी। Just recall your date of birth. अपनी जन्म तारीख याद करें। जन्म तारीख के साथ अगर आपको आपका वार याद हो, यू रिमेंबर द डे, मंडे ट्यूसडे जो भी, उस दिन को याद करें। If you remember your zodiac, recall your zodiac, आपकी राशि याद हो आपको, तो राशि को याद करें। और अगर राशि याद नहीं हो तो उस माह पर अपना ध्यान ले जाएं जिस माह में आपका जन्म हुआ था। धीरे से अपना ध्यान अपने शरीर पर लेकर आए। इस शरीर से जुड़ी शारीरिक पीड़ा, रिश्तों की पीड़ा, अभाव की पीड़ा एक साक्षी भाव से देखिए। पाप क्या पुण्य, पाप क्या पुण्य सारे भुला दे, पाप क्या पुण्य सारे भुला दे, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे, ये परीक्षा न होगी दोबारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। कभी तन में कभी मन में उलझा, कभी तन में कभी मन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा, सबसे जीता तू अपने से हारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तेरी आंखें, तेरी आंखें
है दर्पण उसी का, तेरी आंखें है दर्पण उसी का, तेरे दिल में है साया उसी का, तेरे दिल में है साया उसी का, तेरी आंखों में उसका इशारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। पितृगणाय विद्महे जगतधारिणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। अपने आसपास के वातावरण के प्रति अवेयर हो, बिकम अवेयर ऑफ योर रूम, योर surroundings, and become aware of your body, and then you can open your eyes. Is your time along with the smile. अपने शरीर पर अपना ध्यान रखते हुए मन रूपी बंद आंखें आहिस्ता आहिस्ता मुस्कानमय, प्रार्थनामय, कृतज्ञमय मुद्रा में खोल सकते हैं। ओपन योर आईज। Feel the glass of water. Take water. Good. Now remember, you are more your soul element. Don't bring your intellect. Your soul element is more powerful.
देन प्लैनेट्स। एक बात बताइए, बहुत गहरी बात करूं और एस्ट्रोलॉजिकल बात करूं और तथ्य के साथ बात करूं। अगर आप टीसीएस में काम करते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, ओके, हाउ मेनी टाइम यू थिंक अबाउट द ऑनर ऑफ द कंपनी? आप जब काम करते हैं कितनी बार उस कंपनी के मालिक को याद करते हैं? आपको प्रमोशन आपके मालिक के नाम को याद करने पर नहीं मिलेगा। आपको प्रमोशन आपकी एक्शन पे मिलेगा, आपकी वे ऑफ वर्किंग क्या है, आपकी मॉनिटरिंग क्या है, उस पर, अपने समय का उपयोग कितना प्रोडक्टिव करते हो उस पर रिजल्ट मिलेगा। द सेम मैनर द प्लैनेट्स आर द ऑनर ऑफ द सम एक्टिविटीज। If you focus on that particular activities, the planet will get the indication. जहां तक ज्योतिष शास्त्र अधिकांश प्लैनेट से उस तक आता है, हम लोग उससे प्लैनेट तक पहुंचेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम बात कर रहे हैं मून। मून वेरिएबल 2 घंटे 2.5 घंटे बदलता रहता है। मून इज कनेक्टेड विथ योर माइंड, राइट? मून इज कनेक्टेड विथ योर मदर। इन द बॉडी मून इज कनेक्टेड विथ योर लंग्स, कफ, अस्थमा। अगर मैं मेरे लंग्स को दुरुस्त रखूं, मेरी मां का कृपा आशीर्वाद पाते रहूं, मेरे मन को संयम रखूं, तो मून कुछ भी करेगा, वो गेट द इंडिकेशन। देखिए, आप समझिए, ज्योतिष शास्त्र में वह लोग वो प्लैनेट से इंपैक्ट बताते हैं, बट मैं तो इंपैक्ट बात करूं, मुझे पूरा विश्वास है अगर टीसीएस कंपनी का मैं कर्मचारी हूं और कंपनी में परफॉर्म कर रहा हूं अच्छा, और मेरी टीम को परफॉर्म करवा रहा हूं, मैसेज वहां तक जाएगा, भाई श्री रमन टीम इज वर्किंग वेरी वेल। इसलिए नहीं जाएगा कि मैं मेरे मालिक की प्रार्थना कर रहा हूं, ये टीसीएस कंपनी के मालिक की प्रार्थना कर रहा हूं तो आई विल गेट ए गुड मार्क। यस, एग्रीड और नॉट? तो वी आर प्रेजेंटिंग द एस्ट्रोलॉजी इन सच वे। हम लोग ऑब्जेक्ट पे ध्यान देंगे। आपका तो सन खराब है, who are you that I can say? जिस देखो, आपको थोड़ी आज एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट से तो हम प्लैनेट्स की डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि प्लैनेट भी अपने अपने घर में है अभी भी। देखिए, ग्रह मतलब उनका घर है। ग्रह को आप ग्रह माने, ग्रह। प्लैनेट्स अलग अलग इंडिकेशन देते हैं। आई एक्सप्लेन इट वेरी ब्यूटीफुली बिफोर। हम तो अभी आज आपने जो मेरे साथ ध्यान करा है, अगर लोग 10% भी मुझसे जुड़े होंगे, 15% भी अपने टाइम को मेरे साथ दिया होगा, तो उन्होंने अपने रूम्स को क्लीन करा कि आपके पूरा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट मैंने डिटॉक्स किया है। ऑब्वियसली आपको जहां भी पीड़ा होगी, ऑटोमेटिकली ध्यान पीड़ा पे जाएगा ही। हमने कहा बिकम अवेयर ऑफ योर मदर, तो मां से कनेक्ट हो गए आप, और मां से कनेक्ट हो, कनेक्टेड विद द मून। थिंक अबाउट योर सन, think about your father. If you are connected with the father, you are automatically connected with the son. Think about your siblings. Siblings will automatically connected with your Mars. Think about your mama, automatically connected with the Mercury, keeping attention on the particular portion. Think about your spouse, connected with the 7th house. तो हम प्रणाम करते हैं सभी एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज को, जिनके माध्यम से आज एस्ट्रोलॉजी जगह जगह अलग अलग संदेश दे रही है। वी रिस्पेक्ट लॉट, बट we are keep the believing, we are not proud of ourselves, but we know तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तो किसका सहारा। ना कोई गुरु का सहारा चाहिए मुझे, मार्गदर्शन तो सबसे बड़ा, मेरे मार्गदर्शन मेरी माँ के अलावा कौन उदाहरण है, मेरे पिता के अलावा कोई उदाहरण है? मैं तो आपको बता दूं, आपके आध्यात्मिक गुरु भी जो भी हो, उन्होंने उतना किया जितना माता पिता ने किया आपके। यस,
How much your mother parents did for you, your spiritual mentor did that level. Again, maybe possible you can feel some smell that I'm talking against. No, I'm not talking. जिसका जो स्थान है उसको स्थान देना है. अगर 9वां कमरा आपका 28 का एरिया है, यहाँ पर गुरु का स्थान है, यहाँ पर गुरु को याद करके अपने गुरु को प्रणाम करना है. गुरु ने कोई भी ज्ञान दिया, आपको नॉलेज दिया, आज आपने नॉलेज दिया, वो गुरु मेरा जीवन का कोई भी हो सकता है. आध्यात्मिक गुरु अलग हो सकता है. बाकी जीवन में मैं मेरे गुरु को केवल एक दो शब्द तक या एक शरीर तक सीमित नहीं रखूंगा. उसी प्रकार जिस प्रकार मेरी माँ है, उसको मानता हूं. उसके बाद बाकी मेरी माँ की उम्र की सभी मम्मी जी अपने मुंह से निकलता है. यस नो निकलता है ना. इफ लेडी इन योर मदर एज ऑटोमेटिकली से मम्मी नमस्कार, मम्मी जी नमस्कार, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकले. आप इस पे ध्यान दें. ग्रहों से डरना नहीं. लव योर प्लैनेट्स. अगर प्लैनेट के जो कारक हैं उनको प्यार करोगे आप, तो प्लैनेट खुद ही खुश हो. हाँ या ना. बजाय हम रिचुअल पे अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, प्लैनेट ये करेगा तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे जाओ. अब कुछ राहु प्लैनेट की मैं आपको रेमेडी ऐसी बता देता हूँ कि उसके अंदर वो बोलता है कि आप नाले के अंदर जाना और नाले में कुछ बहा के आना. Oh my God, how the young generation will accept these remedies? यार मैं जा रहा हूँ शरीर में, मैं नाले में जाके कुछ करके आऊंगा तो मेरा राहु ठीक हो जाएगा. ये कौन सी लॉजिक है? उसको सेम अनदर पॉइंट रिट्रेक्ट लोग क्या कहते हैं कि आप अपने घर का टॉयलेट खुद साफ करा करो. इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ राहु रेमेडी. तो मैं आपको जो मेरा सेशन रहेगा एस्ट्रोलॉजी का, उसमें मैं जो आपको रेमेडीज दूंगा वह आपके घर के अंदर अंदर की दूंगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं. मेरा पूरा विश्वास है. आप जिसे कहते हैं दृष्टि, कोई ग्रह की बोले ज्योतिष शास्त्र में, वो ग्रह की दृष्टि आपके 7वें घर पे, आपको 5वें घर पे दृष्टि. अरे भाई मेरी दृष्टि मेरे 12 कमरों पे भी है और मेरे 9 ग्रहों पे भी. मैं तो मेरी दृष्टि की बात करूंगा. मेरी दृष्टि, माय विजन, आई कीप द लिमिटेड ऑन द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स. जो मैंने आपको बताया कि एक टीसीएस का मालिक या मुकेश अंबानी का मालिक, केवल वो फैक्ट्री में काम करोगे, जो यंत्र जुड़े, जो मशीनरी लेगी, उस पर ध्यान दोगे ज्यादा है बजाय मुकेश अंबानी पे. तो अप्लाई ऑन योरसेल्फ. ये चीज आज से ग्रहों के माध्यम से मैं आपको कह रहा हूं, अपने ऊपर अप्लाई करो. उसको मत देखो, आप तो अपना टोटल टाइम पे ध्यान रखो. और जिस प्रकार की एस्ट्रोलॉजिकल आपको सेशन करवाया आज, इसे समय समय पर मैं आपको हर संडे आता ही हूँ. आज मैंने भस्म योग नहीं कराया, डिवाइन एस्ट्रोलॉजी नहीं कराया, अलग तरह से, क्योंकि आज हर व्यक्ति नंबर ऑफ प्रेजेंस आज इंक्रीज इसीलिए हुई कि वो प्लैनेट्स का सब एक जैसे आ रहे हैं तो क्या करना. तो एज पर द प्रेजेंस आई कन्वर्ट माय सेशन एंड द बोथ आर सेम. डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का प्रोसेस भी यही है. कितना ब्यूटीफुल बना है हमारा प्रोसेस. डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग में प्रोसेस जो आपको 5 स्टेप्स की है वो सब आ गया उसमें. सभी ग्रह, राहु केतु. अब एक लास्ट बात बोलकर मैं वाणी को विराम दूंगा कि देखिए आपके चार्ट में ना, आपके शरीर के, मानो आप, मैं एस्ट्रोलॉजी का चार्ट को भूल जाता हूं, इसमें 3 रूम्स आर वेरी अलार्मिंग. फर्स्ट इज अ 6th रूम. 6th रूम मीन्स क्या? आपका इंटेस्टाइन, आपका लीवर एरिया, पार्ट ऑफ बॉडी में. आप कल्पना करो आपके शरीर का मध्य प्रदेश ये है. अगर जहां पे जैसा हमारा खान पीन होगा, हमारे शरीर का रोग वैसे होगा. जैसा खाओ अंग वैसा रहे मन. तो ये 6ठे रूम पर हमें ध्यान देना है. दूसरा 8th रूम. 8th रूम पेल्विक रीजन. जिस स्थान पर आप बैठा है, शरीर आपका बैठा है, पेल्विक रीजन लिखा है, इस स्थान पे भी आपको ध्यान देना है एज पर एस्ट्रोलॉजी. बट मैं उसको कन्वर्ट करूंगा दूसरे रूम में. नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर से 6th रूम, 8th रूम and 12th room. It's very danger zone. If any planet is placed in the 6, 8 or 12, it's a danger zone. अब मैंने इसको बॉडी पर अप्लाई करवा के देखा, रिलेशंस में अप्लाई करके देखा, तो अभी देखिए आप शास्त्रों में हमारे मामा की भी बहुत वैल्यू हुई.
मामा, मामा मीन्स 2 टाइम्स मदर। 6 रूम आपका इंटेस्टाइन एरिया, अपना ध्यान रखें। लीगल, लोन, डेप्थ, हिडन एनिमीज, सब ये सब छठे कमरे का स्थान है। तो ऑब्वियसली कौन चाहेगा लोन, कौन जाना चाहेगा अदालत, कौन रखना चाहेगा शत्रु। तो छठे कमरे पे अपना ध्यान देना है। और छठे कमरे में जैसा रहा, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जो इंटेक्ट हमारा जाएगा इसके अंदर वैसा ही वो जाएगा, और वैसे ही हमारे थॉट रहेंगे, और वैसे ही हमारा शरीर रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, पेल्विक रीजन, 8th रूम। अब 8th रूम आपका कनेक्टेड क्या हुआ? पहली चीज आपका रहा 8th रूम आपका पेल्विक रीजन है, जिस स्थान पर आपका शरीर बैठता है ना। अब मैं इसको, पेल्विक शरीर का बहुत अंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन 8th रूम को करा। 8th रूम किसका होगा रिलेशन में? मुझे बताया कौन? योर इन लॉज फैमिली का। अगर आप अपने इन लॉज फैमिली का ध्यान रखेंगे, इफ यू कीप अटेंशन ऑन योर इन लॉज फैमिली, इफ यू आर मैरिड, योर 8th रूम विल बी ओके। आप देखिए, अब मैं 12th रूम में आता हूं। 12th रूम आपके होगा फीट, ये दोनों पैर, राइट। अब इन 12th रूम का जो सबसे माइनस पॉइंट है, ये दोनों पैरों को कहां लेके जाता है? अस्पताल में लेके जाता है। विद द हेल्प ऑफ फीट वी यूज्ड टू गो। यह पैरों को जेल में लेके जाता है। यह आपकी फॉरेन यात्रा करवाता है। तो काहे में जाएंगे फॉरेन यात्रा? जो पैरों से चल के जाएंगे ना। दैट्स व्हाई दैट 12th रूम। बट ये हो सकता है, ये पैरों का उपयोग करके हम फॉरेन भी जा सकते हैं, हम हमारे प्रिजन भी जा सकते हैं, हम हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। तो जरूरत नहीं पड़े तो अगर शरीर की हम हीलिंग करते रहेंगे, हॉस्पिटल की जरूरत क्यों? और प्रिजन्स के लिए तो आप अगर 6 रूम बराबर रहेगा, कोई लीगल वगैरह बराबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मामा का कनेक्शन आपके प्रिजन से हुआ कि नहीं? मामा मतलब वो डिटेल में बात बाद में करेंगे, मैं तो अभी शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। तो अभी इनके माध्यम से 12th रूम वो खराब बता दें। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, एक रेमेडी दे। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी गिन लें, मैं बीमार नहीं पड़ जाऊं, मैं अस्पताल में भर्ती नहीं हो जाऊं, मैं ये नहीं हो जाऊं, अस्पताल में क्या होगा, मेरी स्थिति ऐसी हो रही है अस्पताल में भर्ती हो जाऊंगा। आप एक काम करें, सेंड समवन टू फिल फ्यू वाटर, पानी का ग्लास या पानी की बोतल 1-2 आपके नजदीक के अस्पताल से बुलवा लें। वाटर बॉटल अपनी 2-3 आरओ की, या तो जो पानी की बोतल बेचती है कैंटीन की, वो वहां से पानी मंगा लें। और वो पानी, एक बोतल मंगाकर वो पानी अपने फ्रेश मात्रा में मिलाकर पिए, या तो वही पानी पिए। अब इससे क्या होगा? हु कैन से, कौन बताएगा? आज प्लैनेट्स फिजिकली तो देख के नहीं आ रहे कि मिश्रा जी 203 रूम नंबर भर्ती। फ्रॉम द वाटर रिसोर्सेस कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल्स, वो आपका कमरा आप अपना एक्टिवेट कर दोगे। अगर कोई ग्रह यह कह रहा है कि आपको इस दौरान अस्पताल में भर्ती होना है, अगर आप अस्पताल का पानी पीना चालू कर दोगे 7 दिन पहले, मेरा दावा है कि आप अस्पताल में भर्ती नहीं होंगे। यू कैन चेंज दैट इवेंट। हाँ या ना? हाउ मेनी आर एग्रीड विद मी? रेज योर हैंड। यू कैन डिसएग्री आल्सो मी। अगर भाई 100% नहीं हुआ, आप ये बोलते हो मैं तो आखिरी जाने लीडर तो भर्ती तो होना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं है, तो अगर वो करेंगे आप, तो मेरा पूरा विश्वास है उस इवेंट को आप टाल सकते हैं। सामान्यतः आपको मालूम होगा कि जो प्रिजन्स रहते हैं ना, जो 12th रूम डिस्टर्ब होता है, प्रिजन में जाते हैं, तो वो मेरा चूंकि जाना रेगुलर ही प्रिजन में, तो वहां पर खूब सारे बाहर के लोग खड़े रहते हैं। वो ज्योतिष लोग बोलते हैं उनको कि आप एक बार जेल के अंदर होके आ जाओ। तो वो हम उनको, जेल के जो ऑनर है ना, उनको बोलते हैं 1000 या प्लीज मेरे को अंदर आके बाहर आ जाने दो। Do you know this remedy? I think if the somebody, my God, is the biggest remedy. और बोला वहां जाकर एक गिलास पानी पिया, तो देयर रेट इज डिसाइडेड इन द एवरी प्रिजन, कि आपके अंदर आने जाने के कितने रुपए देना पड़ेंगे आपको, और आपको वहां का पानी पीना तो कितने रुपए देना पड़ेगा। एनीबॉडी अवेयर अबाउट इट? यस, नो? आई एम नॉट।
आई एम द लिविंग एग्जांपल, मैं देखता हूं। अगर आप उस वक्त जेल जाकर जेल का पानी पीकर आ सकते हैं तो अपने जेल जाने इवेंट की वो खत्म कर सकते हैं, इंटेंसिटी कम कर। प्लानेट का तो काम हो गया, उसको लगा जेल गया ये। तो मैं इस प्रकार के उपायों से बांधूंगा आपको आने वाले जो मेरा एस्ट्रोलॉजिकल कोर्स है, जिसमें आपको घर से बाहर जाने की जरूरत। कभी हर्डल्स आती हैं कि मेरा पीआर नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, हम करेंगे। लेकिन अभी हम विश्वास ये करते हैं कि मेरे को तो मेरे 9 के 9 ग्रह प्यारे हैं। अगर मैं हूं, अगर मेरे 9 बच्चे हैं, 2 बच्चों में से 2 तकलीफ दे रहे हैं, तब भी मैं उनके लिए पिता हूं, क्योंकि उनके बगैर मेरा काम, क्योंकि एवरी प्लैनेट कंटेनिंग वन एलिमेंट। क्या बगैर फायर एलिमेंट की आपकी बॉडी रह सकती है? द फायर एलिमेंट रिप्रेजेंट बाय 159। आपका एरीज, आपका लियो, आपका कैप्रिकॉर्न, वो आपका पर्टिकुलर वो है वाटर, वो फायर एलिमेंट। मून वाटर एलिमेंट, मर्क्यूरी अर्थ एलिमेंट, गुरु एयर एलिमेंट, स्काई एलिमेंट, सैटर्न, ऐसे अलग अलग एलिमेंट से बटे हुए। तो पांचों एलिमेंट के बगैर मेरा काम ही नहीं चलेगा। हाँ या ना? माय गॉड, नहीं बढ़ गया। तो अभी पांचों एलिमेंट तो लेके चलना है मुझे। मैं राहु को कैसे भगा दूं, या केतु को कैसे भगा दूं? रात के बगैर मेरा काम चलेगा। मैं शनि को कैसे हटा दूं? अरे यार गुरुजी, the biggest curse I request to all the astrologers, those are here, is biggest कर्स है, आप किसी ग्रह को खराब बोलते हो। कभी नहीं बोलना, जो एस्ट्रोलॉजर्स देखते करते हैं, अरे तुम्हारा तो शनि खराब है। बेटी, हु आर यू? आपको क्या मालूम उसकी पीड़ा का कारण शनि है या कोई और है, या उसके कर्म है? सॉरी सर, मैंने कुछ गलत बोल दिया, लेकिन मैं थोड़ा होश में आ जाता, मुझे पता लगता है, बात आती है, अरे आपका तो गुरु खराब है। अरे गुरु खराब होता है क्या? आपके जो कर्मास है, पास कर्मास है, वो हिसाब से वो इम्पैक्ट देगा। अगर गुरु भी आपको लगता है हाथ पे चपा कान खींच लेता है। तो दिस इज द माय मेन कंसर्न, व्हाई आई वांट टू कीन टू ब्रिंग एस्ट्रोलॉजी कंसेप्ट। द मेन रीजन इज दैट। उसके बाद भी फर्क नहीं पड़े तो यू आर वेरी फ्री, गो आउट, आप जा सकते हैं। लेकिन जो भी तकलीफ आपको प्लानेट तो नहीं दे रहा है, वो प्लानेट तो आपका, आप बैंक के पास जा रहे हो, आपके खाते में 2000 रुपए नहीं है और आप 10,000 का चेक पास कराना चाह रहे हो, कैसे होगा? तो आप बैंक वाले को बुरा बोलते हो क्या? एनी टाइम यू सेड द बैंक वाला, अरे बैंक वाला खराब है यार, अरे बैंक वाला खराब है, वो पैसे नहीं दे रहा। अरे आपके अकाउंट में पैसे तो ना, तो देयर इज द सेम इंटेंसिटी विद द प्लैनेट्स। तो आज से मैं कभी अपने ग्रहों से नफरत ना करूं। भाई पैसे नहीं है, अकाउंट में डालोगे तभी निकलेंगे। अकाउंट में कैसे डालोगे? ऐसा तो नहीं ईश्वर का अकाउंट है कि आज डाला ना कल निकाल लोगे। If Saturn is giving trouble to you, it means you have to respect your subordinates. You have to respect your all elders people. वृद्ध बुजुर्ग लोगों की सेवा करो, तो शनि ज्यादा प्रसन्न होगा, बजाय शनि के मंत्र पढ़ने से या शनि पूजा। शनि जो करता है वह काम आप करोगे। फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी, अरे मर्क्यूरी उनका बुध खराब है, बोलना खराब है, वाणी खराब। आपने अगर आपकी वाणी का सदुपयोग पिछले जन्म में नहीं करा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी वाणी अच्छी हो? बुध को, किसी ग्रह को आपसे कोई लेना देना नहीं। वह तो जो प्लैनेट है वो अपने हिसाब से वो रिटर्न देते हैं। जो भी आपका जीवन है पूरा लिखा गया। मेरा दावा है, मैं करता हूं कि कोई भी करेक्टिव कर सकता है, अपनी पीड़ा को कम या ज्यादा करता है, पीड़ा मुक्त नहीं कर सकता। नहीं तो आज की तारीख में बड़े बड़े आध्यात्मिक संत भी डायलिसिस पे जाते हैं। क्यों जाते हैं भैया? जस्ट आई वांट टू नो द रीजन व्हाई दे आर गोइंग। ओ माय गॉड, वो तो भगवान है। वो भी 5 एलिमेंट बॉडी, दे आल्सो कांट डिस्टर्ब। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपकी भावनाओं को, श्रद्धा को ठेस पहुंचा, लेकिन मैं जो भी कह रहा हूं मैं स्वतंत्र दिमाग से अपने विवेक को यूज करके बोल रहा हूं। हो सकता है मेरे वचन ज्यादा, लेकिन नहीं, हर व्यक्ति 5 तत्व का है।
जिसे विवेकानंद जी कितना क्लियर कहते हैं कि बीमारी आपके शरीर का मंदिर है। आज आपका पैर दुख रहा है, खूब दर्द दुख रहा है, आपका ध्यान दर्द पे रहेगा कि कहीं और रहेगा? दर्द पे रहेगा, पूरा दर्द दूर हो जाए, दर्द ठीक हो जाए, दर्द ठीक हो जाए। तो ओवरऑल वेरी सून वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्ट अलॉन्ग विथ, आप भी पढ़ सकते हैं कि मेरे को ये पीड़ा क्यों मिल रही है। हमने डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा कम लिया था समय, अभी हम आपको आने वाले टाइम में ज्यादा देंगे। इसके अंदर हम पूरा आपका चार्ट अलग बनवाएंगे, जिसके अंदर आप अपने 12 के 12 कमरों को देख सकते हो। अभी तक तो आपने इमोशनली देखा, मैं आपको थ्योरेटिकली भी दिखाऊंगा कि ये 12 कमरे आपके हैं। आपके कौन से कमरे में क्या हो रहा है, ये इसका डिसीजन आपको लेना है, मेरे को नहीं लेना है। मैं तो आपको बता दूंगा कि ये कमरा गंदा है, ये कमरा खराब है, इसको ठीक कैसे करना, ये आप कनेक्ट करो अपने आप। ओके, एंड आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू एनीथिंग कि आपका ये चल रहा है कि मैं कुछ नहीं पूछूंगा, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर। ओके, सो today again 8:30 we are going to meet again along with one beautiful Pitras place darshan, और उसके बाद हमारा फाइनल इवेंट 17 तारीख को है सरस्वती अमावस्या पर 11 से 12। इस दौरान डिफिकल्ट टाइम फॉर द यूएस पीपल, बट देखिए उसको रिकॉर्डिंग में बाकी 17 तारीख को आप ज्वाइन करेंगे 11 से 12 के बीच में। तो जितने अध्यात्म, जितने सरस्वती अमावस्या के स्थान है, गया जी हो गया, हरिद्वार हो गया, पुष्कर जी हो गए, सभी लोगों से एक साथ हम मिलकर कोरोना से मारे गए अज्ञात लोगों के लिए हमें प्रार्थना करेंगे। और अपने लिए तो प्रार्थना, ये ध्यान रखना, मेरे लिए एक का फोन आया, गुरु जी हम हमारे लिए नहीं बेटा, तुम किसी और के लिए कर रहे हो, ईश्वर देख रहा है, तो आपको आपके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। व्हेन यू आर प्रेइंग फॉर समवन एल्स, यू नॉट रिक्वायर्ड टू प्रे फॉर योरसेल्फ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। आज मेरे बराबर समय दिया आप लोगों ने भाव के साथ। बस मैं आपके साथ हूं, बस आप अपने साथ रहे। मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि आप मेरे साथ हो, बस आप आपके साथ हैं तो मैं आपके साथ हूं। इफ यू आर विथ यू, नॉट आई मीन एवरी डिवाइन प्लानिंग इज विथ यू, इफ यू आर विथ यू, अगर आप अपनी पीड़ा के साथ हैं, अगर आप अपने दर्द के साथ हैं, कर्ज नहीं कर रहे हैं भगवान को, हर दिव्य शक्ति आपके साथ। आज एक काम करना, आज का ये सेशन हो जाए ना, उसके बाद ये नोट करना कि इस जीवन में एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, अभी हो सकता है अगले संडे मिले नहीं मिले, कौन आएगा। आज एक कैलकुलेशन करना अपना ग्रहों का, आपने देख लिया कि आज एवरी प्लैनेट इन द होना, आप एक पिक्चर बनाना, आपने क्या किया प्रकृति से, भगवान से, भगवान को मान लो, भगवान से आपने क्या लिया और भगवान को क्या दिया। मेक ए चार्ट। भगवान ने आपको दिया सुंदर शरीर, 84 लाख करोड़ योनियों में से मानव शरीर दिया, आपने भगवान को क्या दिया। भगवान ने आपको अच्छा घर दिया, खाने पीने का, जब भूख लगती है, जब खाने को मिलता है, जब दिन, आपने भगवान को क्या दिया। पत्ते, पानी फ्री, ऑक्सीजन फ्री, हमने ईश्वर को क्या दिया। हर चीज अवेलेबल है, भगवान ने जब चाहे गाड़ी वाड़ी, ईश्वर, आप मेरे हिसाब से वर्ल्ड के 20% लोगों में से होंगे जिसको कोई चीज खरीदते वक्त सोचना नहीं पड़ता कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं। हमने भगवान को क्या दिया, और भगवान भी कोई अस्तित्व में है तो नहीं यहाँ पर धरती पर। भगवान भी उसी प्रकार अलग अलग लोगों में बसता है, उनकी सेवा करो तो भगवान की सेवा है। नारायण सेवा इसको बोलते ना। नारायण मीन्स के नर में नारायण, नारायण, हम विष्णु जी के फोटो के सामने नारायण 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 गाते, अरे नारायण क्या, नर में नए नारायण। वो इंसान जो कभी पीड़ा में, किसी तकलीफ में, उसको अपने तन मन धन से जाके मदद करो, ज्ञान दो, नॉलेज दो, ये बहुत बड़ी बात। सो ये काम आप जाके करना तो आपको अपना खुद का मार्कशीट पता लग जाएगी कि कितनी चीजें आपने उससे ली है और कितनी चीजें आपने दी है। जस्ट यू विल एंजॉय इट। फिर पता लगेगा वो लोगों को उत्तर मिलेगा, स्पेशली उन लोगों के लिए,
अरे मैं तो बहुत पीड़ा में हूँ, मेरी किस्मत क्या भगवान ने बनाई है, अरे मेरी जिंदगी भर गई गुरुजी, आज तक मैंने सबका अच्छा सोचा, मेरा ही बुरा क्यों होता है? Then you will get the answer. ओके, चलो नमस्कार, धन्यवाद। आज 8:30 बजे पुनः मिलते हैं और खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, अपने साथ रहें। अगर आप अपने साथ रहेंगे, हर दिव्य शक्ति आपके साथ रहेगी।